अब हम चलते हैं हमारी दूसरी वाली किताब विच इज जीरो लिमिट्स बाय डॉक्टर जो वैटाले एंड डॉक्टर ह्यूलन। और इसमें हम उन्हीं सोशल वर्कर की चिट्ठी पढ़ रहे हैं जो उन्होंने सारी वो जेल की हालातों के, हॉस्पिटल था बट वो जेल था, हॉस्पिटल जेल। तो उसमें जो पेशेंट्स की हालत थी, जो स्टाफ का हाल था, वो सारा उन्होंने बताया है। और कल उन्होंने बताया कि स्पेशली 2 पेशेंट्स थे जिनका जो बहुत ही खतरनाक थे। एक पेशेंट आया था जो बोल रहे थे ना कि मेरे तो बैक ऑफ द नेक के बाल खड़े हो जाते थे उसको देख के, यानी कि मतलब मैं इतनी टेरिफाइड हो जाती थी वो सामने से जाता था। लेकिन वही पेशेंट कुछ महीनों के बाद बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया और अब वो जा रहा था और उसके शैकल्स भी नहीं लगे हुए थे हाथ और पैर में। और आई ऑल्सो डिडंट फील स्कैर्ड बिकॉज वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एक पेशेंट में आया था। और उसके आगे से अब हम पढ़ेंगे एंड दिशांत विल बी रीडिंग फ्रॉम दिल्ली फॉर अस। The other situation occurred while I was watching the news on television. I had taken a mental health day off to get away from work and relax. The court appearance of a CISU patient who had molested and murdered a 3 or 4 year old girl showed up on the news. The patient had been hospitalized as he was deemed unfit to proceed on the charges against him. He was examined and evaluated by several psychiatrists and psychologists and given an array of diagnoses, which back then would have most likely gotten him a not guilty by reason of insanity judgment. He would not have had to go to the prison and would have been committed to the less restrictive setting of the state hospital with the possibility of a conditional release. Dr. Hewlin had interacted with this patient who eventually asked to be taught the SIH process and reportedly was very persistent and consistent in its practice. Like the ex Marine officer he was, he, by now, had been deemed fit to proceed and had a court date to state his plea, whereas most other patients and their attorneys had opted and would probably always opt for the NGRI plea. The patient did not. The day before he was to appear in the court, he dismissed his attorney. The following afternoon, he stood in the court facing the judge and regretfully and humbly proclaimed, I am responsible and I am sorry. No one expected this. I took a few months from the judge. It took a few months before the judge could grasp what had just happened. I'd played tennis with Dr. Hewlin and this fellow on 2 or 3 occasions. And though the patient was most polite and considerate, I had judgments. However, at the very moment, I only felt tenderness and love for him, and a sense and sensed a huge shift in the entire courtroom as well. The judge and attorneys' voices were now gentle, and all those around him seemed to be looking at him with tender smiles. It was a moment. So when Dr. Hewlin asked if some of us would like to learn about this Ho'oponopono after tennis one afternoon, I jumped fast and high. Anxiously waiting. Yeah, sorry, my screen paused. Anxiously waiting for the tennis game to come and go. It's now almost 20 years later, and I'm still awed by what I have since learned was the divinity working through Dr. Hewlin at Hawaii State Hospital. I'm eternally grateful to Dr. Hewlin and the weird process he brought with him. तो इस वाले एक्सपीरियंस को समझते हैं। ये जो एक पेशेंट आया था हॉस्पिटल में, तो इसको हॉस्पिटल डाला था एक्चुअली इसने 3 साल की एक छोटी सी लड़की को मॉलेस्ट करके, रेप करके उसका मर्डर कर दिया था। बहुत ज्यादा मेंटली अनफिट। तो नॉर्मली अगर कोई किसी को मर्डर करता है तो हम सबको पता है कि उस इंसान को जेल में डाला जाता है, उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता। लेकिन वो पेशेंट दिमाग से इतना ज्यादा हिला हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, दैट उसको हॉस्पिटल में डाला गया, मेंटल हॉस्पिटल में, उसको नहीं जेल में, क्योंकि वो जेल में जाने लायक ही नहीं था बिल्कुल भी। तो उसको हॉस्पिटल में डाला और वो बहुत ही हीनियस काइंड ऑफ क्रिमिनल था, उसका पास्ट भी वैसा ही था, मतलब कुछ ना कुछ उसने बहुत खतरनाक क्राइम्स किए हुए थे। तो उसको दिमाग के इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रखा हुआ था, जहां पे डॉक्टर ह्यूलन की पोस्टिंग थी जब हवाई स्टेट हॉस्पिटल में, तो वो भी हवाई स्टेट हॉस्पिटल में आया था। और मतलब
उसके साथ जो कोर्ट में हियरिंग के लिए तो इन सबको जाना ही पड़ता था, तो कुछ टाइम के लिए तो वो मेंटली इतना अनफिट था कि वो कोर्ट हियरिंग ही स्किप कर रहा था, वो नहीं जा पा रहा था। लेकिन इवेंचुअली जब थोड़े समय के बाद डॉक्टर ह्यूलन क्लीनिंग कर रहे थे सारे पेशेंट्स की, तो जब डॉक्टर ह्यूलन ने इतना ज्यादा खतरनाक पेशेंट का क्लीनिंग किया तो वो मतलब सुधरने लग गया, मतलब उसको इतना ज्यादा वो पब्लिकली घूमना फिरने लग गया। अभी तो उसको रूम के भी बाहर निकलना अलाउ नहीं करते थे, बिकॉज मतलब ही वॉज वेरी, मतलब किसी को अटैक ही ना कर दे वो, तो उसको बाहर नहीं आने देते थे। लेकिन कुछ महीने को बाद जब वो ठीक होने लगा तो अब उसको हाथ और पैरों में शैकल्स के साथ नहीं, मतलब जो चेन बंदी होती है उसके साथ में, बिना कड़ियों के उनको वो घूमने लग गया था। और करीब 1 साल के बाद, है ना, मतलब इट टुक अ ईयर दैट उसकी कोर्ट हियरिंग थी। तो जब भी कोर्ट में कोई अपील होती है तो आपका अटॉर्नी होता है ना, आपका मतलब कोई ना कोई आपका वकील होता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो उनका जो वकील रिप्रेजेंट करने वाला था, कोर्ट की हियरिंग आई और इस पर्सन को, क्रिमिनल इसको बताया पर्सन को कि तुम्हारी कोर्ट की हियरिंग है। उसने उसी दिन, जिस दिन हियरिंग थी उसकी, कोर्ट में जब पेशी थी, उसी दिन अपने वकील को बोल दिया कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा। एवरीबडी वॉज शॉक्ड। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता थी डॉक्टर ह्यूलेन की, कि वो इंसान जो सिर्फ गंदी भाषा में बात करता है, क्रिमिनल है, किसी से हमेशा काटने पीटने मारने की बातें करता है, वही सोचता है, वो आज सुबह सुबह ये बोल रहा है कि नहीं, मैं अपना कोर्ट खुद लड़ लूंगा, मैं अपना केस खुद ही लड़ लूंगा, कोई बात नहीं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। एवरीबडी वॉज शॉक कि ये क्या हो गया। उसके बाद वो कोर्ट में गए, वही वाला जो क्रिमिनल है ना, तो वो कोर्ट में गए और जब वो खड़े हुए थे बॉक्स में, तो वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं, ये गलती से मैंने ये वाला, मतलब जो भी है मैं कबूल करता हूं कि मैंने ये वाला मतलब क्राइम किया है मुझसे गलती से, और मैं बहुत ज्यादा माफी फील कर रहा हूं, मुझे क्षमा क्षमा चाहिए, मतलब आई एम सॉरी एंड प्लीज फॉरगिव मी, यस आई हैव डन इट। एवरीबडी वॉज, मतलब कोर्ट में वो इसलिए कोई जाता है क्योंकि वहां पे वो नॉन गिल्टी प्रूव होना चाहता है ना, कौन चाहता है कि जिंदगी भर वो जेल में रहे। बट इसने जाके अपना क्राइम को कबूल किया और ये भी कहा दैट आई एम सॉरी, यस आई हैव डन इट, जाने जाने में, एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। और बस ये जाके बोला, सब बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि उसने इस तरह से कैसे बोला, बट ये सब हुआ। उसके बाद अगेन उसको ट्रीटमेंट की तो और जरूरत थी ही, तो वो ट्रीटमेंट के लिए वापस से, फिर जब कोर्ट की पेशी हो गई उसके बाद वापस वो हॉस्पिटल गए और वहां पे टेनिस का गेम कर रहे थे, बिकॉज अब वो कैदियों की हालत हो गई थी कि वो लोग एक दूसरे से खुशी के साथ इंटरेक्शन करने लगे थे, बोर्ड गेम्स खेलते थे बोर्ड गेम वाले रूम में, और जाके लॉन्स में भी जाके मोइंग करना, प्लांटेशंस करना, लाइक गार्डनिंग करना, ये सब भी उन्होंने शुरू कर दिया था। और फिर जब टेनिस का गेम ये कर रहे थे तो ये वाला जो खतरनाक वाला पेशेंट था इनका, ये भी गया टेनिस का गेम खेलने और बहुत आराम से खेल रहा था। और ये जो सोशल वर्कर है जिन्होंने अब चिट्ठी लिखी है डॉक्टर जो वाइटाले को, ये 20 साल पुरानी बात बता रही हैं, यानी कि ये तो 1981 से 84 में थी, डॉक्टर ह्यूलन तब डेप्यूटेड थे उस हॉस्पिटल में। तो 20 ईयर्स के बाद, क्योंकि इनको ये पता लगा था कि डॉक्टर जो वाइटाले किताब लिख रहे हैं, डॉक्टर जो वाइटाले ने किताब कितनी 2007 और में लिखनी शुरू की, 2007 में, और ये जो बातें हैं ये 1982 83 84 की है ना। तो फिर वो 20 साल के बाद ये जो सोशल वर्कर उस वक्त कहाँ काम करती थी जो उस मेंटल हॉस्पिटल में, उसने अब जाके 20 साल के बाद डॉक्टर जो वाइटाले को चिट्ठी लिखी और बताया कि मैं पूरे टाइम वहां पे डेप्यूटेड थी, मैं काम करने जाती थी ऑनरी, एंड वहां की असली सारा बताया। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ह्यूलेन फिर उसके बाद पेशेंट्स के साथ वो खुद भी लॉन मतलब टेनिस खेलते थे, और जब वो एक बार टेनिस खेल रहे थे तो उन्होंने सबको कहा कि चलो मैं तुमको एक एक हवाईयन प्रेयर के बारे में बताता हूँ। और ये वाला जो इंसान था ना, जो क्रिमिनल था, जो मर्डरर था, ये इतना कंसिस्टेंट था, समहाउ ही वॉज एन एक्स मरीन ऑफिसर। तो मतलब उसके अंदर वो वाला था ऐप डिसिप्लिन वाला जो होता है ना, तो उसने इतनी कंसिस्टेंटली की ये वाली प्रैक्टिस खुद, लाइक वो जो मर्डरर था, अपने जीवन के लिए कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मेरे जीवन में जो भी है उसकी। और उन्होंने अपनी क्लीनिंग खुद की विद 4 फ्रेजेस होपोनोपोनो। और डॉक्टर ह्यूलन ने उस दिन टेनिस के गेम के बाद, इंक्लूडिंग दिस सोशल वर्कर जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, इन सबको बिठा के बहुत अच्छे से होपोनोपोनो के बारे में बताया, एंड सब बड़े एंथुजियास्टिक थे, है ना। और सबसे ज्यादा तो मतलब
सरप्राइजिंग वो मर्डरर था जिसने बहुत बहुत डिलिजेंटली इस प्रैक्टिस को लगातार किया, लिटरली विद दैट आयरन हैंड, लाइक इस तरह से। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है, आगे पढ़ते हैं। हाँ जी। दिशांत। By the way, in case you are wondering, the patient was found just plain guilty and was, in a sense, rewarded by the judge, who granted his request to serve his sentence in a federal penitentiary in his home state, where he could be near his wife and children. Also, though almost 20 years have passed, I received a call this morning from the former secretary of the unit wanting to know if Dr. Hewlin would be available anytime soon to get together with some of the old staff, most of whom have since retired. We will be meeting with them in a couple of weeks. Who knows what may unfold? I will keep my antennae up for further stories. Peace, OH. या सो ये चिट्ठी फाइनली खत्म हुई। जो OH अपना नाम नहीं बताना चाहते, तो इन्होंने बस अपने इनिशियल्स दिए हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस और व्हाटएवर। तो इन्होंने बस इतना बताया, बट उन्होंने ये भी कहा कि ये वाला जो मर्डरर था, ये जो पेशेंट था, ये फाइनली जब इसने खुद ही अपना केस लड़ा, जब ये कोर्ट में गया, तो फाइनली ही वाज जस्ट प्लेन गिल्टी। इसको वो वाली सजा नहीं हुई जो नॉर्मली मर्डरर्स को होती है, बिकॉज ये बहुत डिलीजेंटली होपोनोपोनो भी कर रहे थे। तो इनको प्लेन गिल्टी हुआ, और उनको जिस जेल में डाला वो बहुत इजी जेल था, मतलब जहाँ पे विजिटेशन राइट्स और वो सब होते थे, और वो भी उनके होम टाउन में, जहाँ पे वो अपने वाइफ और बच्चों से लगातार मिल सकते थे। एंड ही वॉज प्रिटी मच ओके आफ्टर दैट। सो उसके बाद ये जो सोशल वर्कर है ये बता रही हैं कि उनके पास आज ही किसी, मतलब सेक्रेटरी का वहाँ का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि क्या डॉक्टर ह्यूलन से हम मिल सकते हैं, हम चाहते हैं कि डॉक्टर ह्यूलन जहाँ पे भी हैं वो वापस आके इस हॉस्पिटल स्टाफ और उन सब से मिले एक बार। और वैसे भी हॉस्पिटल स्टाफ 20 साल के बाद तो सब रिटायर ही हो गए होंगे ना। तो वो कह रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आर रिटायर्ड, बहुत अभी कम है जो लोग अभी भी सर्विस में हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि डॉक्टर ह्यूलन दोबारा से यहाँ पे एनी टाइम व्हेन ही इज कंफर्टेबल वो यहाँ पे आए, और हम सबके साथ एक बार वहाँ पे मीटिंग करें। और पता नहीं उसमें से क्या आगे निकल के आएगा, है ना। तो ये सोशल वर्कर ने यही बोला है कि आई विल कीप अपडेटिंग यू विद द फ्यूचर स्टोरीज, कि मतलब और क्या आगे हुआ, आई विल कीप अपडेटिंग यू, इस तरह से। तो इस तरह करके वो जो ईमेल या चिट्ठी, आई डोंट नो बाय हैंड लिखी थी कि ईमेल पे लिखी थी, वो फाइनली कंप्लीट हुई जब इन फीमेल ने बहुत अच्छे से सारा समझाया कि वहाँ क्या सिचुएशन थी, क्योंकि पूरे टेन्योर में ये वहां पे थी। हाँ जी। And there it was, Dr. Hewlin had indeed accomplished a miracle at the hospital. By practicing love and forgiveness, he transformed people who were hopeless and in many ways considered throwaways of society. That's the power of love. I wanted to know even more, of course. As I was completing the first draft of this book, I sent it to Dr. Hewlin for review. I wanted him to check it for accuracy. Also wanted him to fill in any holes in the story about his years at the mental hospital. About one work after he received the 1 week। manuscript. After 1 week, about 1 week after he received the manuscript, he wrote the following email to me. Akua, this is a confidential note to you and to you alone. It comes from my reading the draft of Zero Limits. I have other comments to make on the draft, but I will leave them for later emails. You are done, Moraha said, without being empathetic. I'm done with what? I replied. You are done with the Hawaii State Hospital. Although I sensed the finality of her comment that summer day in July 1987, I said, I quote, I have to give them 2 weeks' notice. I unquote. Of course, I didn't. It never came up to do so, and no one from the hospital made mention of it. I never returned to the hospital, even when I was invited to attend my farewell party. My friends had it without me. The farewell gifts were delivered to the foundation of office of I to the foundation of I office following the party. I loved my stay at Hawaii State Hospital in the forensic unit. I loved the folks on the ward.
At some point, I don't know when, I passed from being staff psychologist to being a member of the family. I lived close with the staff, patients, rules, policies, cliques, and forces seen and unseen on the ward for 3 years, 20 hours a week. I was there when seclusion rooms, mental restraints, medication, and other forms of control were regular and acceptable modes of operation. I was there when the use of seclusion rooms and metal restraints simply evaporated at some point. When? Nobody knows. Physical and verbal violence evaporated too, almost completely. The drop in medication use occurred on its own. At some point, who knows when, patients left the unit for recreation and work activities without restraints and without needing medical approval. The transformation of the ward from being crazy and tense to being peaceful simply occurred without conscious effort. The transformation of the ward from being chronically understaffed to being overstaffed simply took place. So I want to make it clear that I was a close and active family member on the ward. I was not an onlooker. Yes, I provided no therapy. I did no psychological testing. I attended no staff meetings. I did not participate in case conferences on patients. I did, however, become intimately involved in the workings of the ward. I was present when the first in ward work project, baking cookies for sale, appeared. I was present when the first of ward activity, car washing, appeared. I was present when the first of ward recreation program started. I didn't carry out the usual functions of a staff psychologist, not because I felt they were useless. I just didn't do them for whatever unknown reasons. I did, however, walk the ward and took part in the baking of cookies and in jogging and tennis games off ward. अच्छा, आई थिंक विल रीड ये अगेन। डॉक्टर ह्यूलन ने चिट्ठी लिखी है, ईमेल लिखी है डॉक्टर जो वाइटाले को, बट आई थिंक विल हैव टू स्टॉप हियर, बाकी का हम कल कर लेंगे। सो डॉक्टर जो वाइटाले ने ये किताब का फर्स्ट ड्राफ्ट, जैसे उसने जो सोशल वर्कर ने चिट्ठी लिखी और डॉक्टर जो वाइटाले को बहुत कुछ पता लगा, तो उन्होंने फाइनली इस किताब को कंप्लीट कर ली, ये जीरो लिमिट बुक को। लेकिन वो चाहते थे कि पता नहीं, उनको लग रहा था कि क्या मैंने मतलब अच्छा लिखा है, मतलब सब कुछ डिटेल में बताया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत लिखा है। तो उनको एक बार लगा कि मैं इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो डॉक्टर ह्यूलन को दिखा देता हूं, ताकि वो मुझे बता दे कि कुछ पॉइंट्स मुझको रिवाइज करना या दोबारा से ठीक करने की जरूरत है। तो उन्होंने जब डॉक्टर ह्यूलन को ये वाले बुक का ड्राफ्ट भेजा ऐसे ही ओवरव्यू करने के लिए, एक बार देखने के लिए, तो डॉक्टर ह्यूलन ने कहा कि आप लाइक उन्होंने ये वाला ईमेल लिखा है इनको जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने लिखाया, तो डॉक्टर जो वाइटाले ने कहा कि कुछ और बताना चाहते हो आप हवाई स्टेट हॉस्पिटल के बारे में जो मुझे अपनी किताब में लिखना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जितना मुझे बताना था उतना बता दिया। और उन्होंने ये बताया कि जब मेरा 3 साल का टेन्योर वहां पे हो गया, तो मुझे मतलब मोड़ना जो उनकी मेंटोर थी, तो उन्होंने बस यही कहा कि डॉक्टर ह्यूलन को कि अब तुम्हारा टेन्योर हो गया पूरा, अब तुम 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड देके यहाँ से निकल जाओ। तो अब उनका काम हो गया था, उन्होंने 2 वीक्स का नोटिस पीरियड दिया और उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने कभी दोबारा मुड़ के उस हॉस्पिटल को नहीं देखा। मैं जिस पर्पस के लिए वहां पे गया था वो वाला पर्पस मैंने अपना पूरी तरह 100% शिद्दत के साथ पूरा कर दिया था। इनफैक्ट उन लोगों ने मुझे मेरे 2 वीक्स के नोटिस के बाद जब मैं गया वापस, तो उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया था मेरी फेयरवेल पार्टी करने के लिए, बिकॉज सारे पेशेंट स्टाफ मेरे परिवार की तरह हो गए थे। तो उन्होंने फेयरवेल करने को बुलाया था, बट मुझे इंस्पिरेशन ये वाली आई थी कि मुझे दोबारा मुड़ के वहां पे जाना नहीं है। और बहुत मुझे प्यार और लगाव वहां से हो गया था कि पेशेंट्स के साथ में मतलब एक नया फैमिली बना। और मैं एक एक चीज जो वहां पे हुई थी, जो ऑपरेशंस थे, जो नई नई चीजें वहां पे हुई थी, जैसे कार वॉशिंग करना शुरू कर दिया था पेशेंट्स ने, उन्होंने कुकीज बना के उन्होंने सेलिंग यूनिट बना दिया था जहां से ये सारे जो पेशेंट्स थे ये कुकीज बनाते थे और सेल करते थे, बेचते थे लोगों को, उसमें वो इन्वॉल्व थे। स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन वाली एक्टिविटीज जो अब शुरू हो गई थी उसमें वो इन्वॉल्व थे। तो इस तरह से बिल्कुल वो पूरी यूनिट ही बदल गई थी, उस वार्ड का पूरा हुलिया स्ट्रक्चर,
जो उनका साइकी पेशेंट्स का था सब बदल गया था। तो उन सब में मैं इन्वॉल्व था और उन्होंने मेरी फेयरवेल पार्टी जो करी तो उन्होंने खुद आपस में ही करी, मैं वहां पे नहीं गया। और जो फेयरवेल पार्टी का जो मेरा गिफ्ट भी एक जो मुझे देना था वो पीस ऑफ आई ऑफिस जो था इनका होपोनोपोनो वाला, वहां पे जाके उनको डिलीवर हुआ। तो उन्होंने कहा कि बस ये सारा काम हो गया एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन वो लोग हमेशा के लिए मेरे परिवार की तरह बन गए और बहुत मुझे अच्छा लग रहा था और मेरा बहुत अच्छा टेन्योर था। और फॉरगिवनेस और आई लव यू ने वहां पे ऐसा मिरेकल क्रिएट किया दैट वहां पे सारे पेशेंट्स 100% हील हो गए। बस 2 ही पेशेंट थे जिनको हल्के फुल्के ट्रीटमेंट के लिए कहीं और जाने की जरूरत पड़ी, अदरवाइज वो वार्ड बंद हो गया। वो तब से बंद है, आज की तारीख तक खुला नहीं है। तो मतलब परमानेंट हीलिंग की उन्होंने वहां पे, इतना हमने अभी तक पढ़ा है। लेकिन अभी डॉक्टर ह्यूलेन की चिट्ठी कंटिन्यू है जो हम कल वाले सेशन में पढ़ेंगे।